اور کچھ عرصہ پہلے حضور نے ہومیوپیتھی کی کلاس جاری کرنے سے متعلق ذکر فرمایا تھا. آج کچھ بچے لیکن بہت چھوٹے ہیں, اسکول گئے ہوئے اکثر بچے, لیکن کچھ دوسرے دوست بھی موجود ہیں. بچے تو بیچارے کلاس نہیں سمجھ سکیں گے. جی بچوں کو تو بطور مریض پیش کیا جا سکتا ہے. مثلا یہ ہے کہ مجھے پوچھا جا سکتا ہے کہ قد چھوٹا ہے, اس کے قد لمبا کرنے کی کیا علاج ہے, کیا دوائی ہے اس کی. اور باقی بڑے ہونے چاہیے مختلف. میں نے کہا تھا آپ کو کہ 2 قسم کی کلاسیں لگائیں, ایک یہاں کے نوجوانوں کی, لڑکوں کی الگ, لڑکیوں کی الگ. اور بعض دفعہ بعض خواتین بے تکلفی سے اپنے اندر ہی سوال کر سکتی ہیں, مگر باہر ٹیلی وائز تو ہوگا مگر وہ نظر نہیں آئیں گی بولنے والی ہیں. انشاءاللہ وہ آرگنائز کرتے ہاں ہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک جو عالمی مجلس اس وقت لگی ہوئی ہے ان کو پہلا سبق تو دیا جا سکتا ہے. ابھی کیا حرج ہے, ہومیوپیتھی کیا چیز ہے اور کیسے شروع ہوئی, اس کا ایک پس منظر بتا دوں. پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ بعض دواؤں وغیرہ کے تعارف, بعض خصوصی بیماریوں سے تعلق رکھنے والی دواؤں کا تعارف. تو اس طرح آہستہ آہستہ سب جگہ دنیا میں احمدیوں کا ہومیوپیتھک علم ترقی کرے گا, اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اپنے گھر میں روزمرہ کی دوائیں رکھ لیں گے, بات بات پر ڈاکٹر کے پاس نہیں دوڑنا پڑتا. اور اس سے پہلے میں اپنا بھی بتا دوں کہ میں ہومیوپیتھک بنا کیسے تھا. ہومیوپیتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ تھے, 1960 کے لگ بھگ کی بات ہے. تو ان دنوں میں, بلکہ میرا خیال ہے یہ اس سے پہلے کی بات ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں انگلستان آیا تھا تو اس سے پہلے میں حضرت مسلم موعود سے دوائی منگوایا کرتا تھا. اور بعد میں بیماری کے دنوں میں پھر میں نے یہ علم حاصل کرنا شروع کیا. لیکن ہوتا یہ تھا کہ مجھے ایک سر درد کی تکلیف ہوتی تھی جو میگرین کہلاتی ہے. اس کو عام طور پر عرف عام میں میگرین کہتے ہیں, لفظ میگرین ہے. یہ آدھے سر کی درد, خواہ دائیں طرف کا ہو خواہ بائیں طرف کا, اسے درد شقیقہ بھی کہا جاتا ہے اردو میں. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اس کے ساتھ متلی بھی ہوتی ہے, اعصابی تناؤ بہت ہوتا ہے. اور مجھے جو ہوتی تھی بعض دفعہ 2-3 دن چلتی تھی, اور بالکل پڑھنے لکھنے کے نااہل کر دیتی تھی. اس زمانے میں مجھے ہومیوپیتھی کا تو پتہ نہیں تھا. پہلے میں ایسپرین کھایا کرتا تھا, بعض دفعہ 4-5 ٹکیاں کھانی پڑتی تھیں, اور اس سے پھر اور بد اثرات. ایسپرین میں تیزابیت ہوتی ہے, معدے کی جو جھلی ہے وہ جلنی شروع ہو جاتی ہے, اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے. پھر گردوں پر بد اثر ہوتا ہے, پھر دل پر, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی. تو اس لیے پھر میں نے حضرت مسلم موعود کی طرف رجوع کیا. آپ کے پاس ایک ہومیوپیتھک نہیں تھی, وہ ایک دوائی تھی سینڈول جو کلکتے سے آیا کرتی تھی. اس دوا سے مجھے بغیر کسی زائد ڈوز لینے کے آرام آ جاتا, ایک ہی ٹکیا سے آرام آ جاتا تھا. اور وہ دوا چونکہ پاکستان میں ملتی نہیں تھی, حضرت مسلم موعود کو کلکتے سے آیا کرتی تھی. تو میں نے کئی دفعہ آپ سے دوائی منگوانی کہ آپ وہ سینڈول بھجوا دیں. ایک دفعہ چھوٹی سیدہ میرا پا کو میں نے لیٹا ہوا تھا, کافی تکلیف تھی, آنکھ کھولنی بھی مشکل تھی. تو گرمیوں کی شام تھی, میں نے کہا آپ ابا جان سے جا کے میرے لیے سینڈول لے آئیں. تو کچھ دیر کے بعد واپس آئیں تو انہوں نے کہا کہ وہ سینڈول تو ختم ہو چکی ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ میں ہومیوپیتھک دوائی دیتا ہوں, یہ استعمال کر کے دیکھ لو. اس وقت تک مجھے کوئی خاص یقین نہیں تھا ہومیوپیتھی پہ. تبرکن میں نے کہا ٹھیک ہے. بعد مجھے بھی کہتے ہیں کہ علاج نہیں آتے, تبرکن دے دو. ہاں ہاں یہ بھی ان میں سے تبرک. ہمارے بعض تبرک سے فائدہ نہیں بھی ہوتا. خیر وہ دوائی منہ میں میرے پڑیا منہ کھول دیا, آنکھیں بند اسی طرح, اور پڑیا منہ میں ڈال دی میٹھی گولیوں کی. اور کچھ دیر باتیں 2-3 منٹ باتیں کی, کہ میں جاننے لگی ہوں کچھ فرق پڑا. تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ درد ہے ہی نہیں, یعنی ہونے اور نہ ہونے کے درمیان جو نو مینز لینڈ ہے وہ بھی نہیں تھی. حیران ہو گیا میں کہ میں کیوں آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوں. اسی وقت کھڑا ہوا, میں نے کہا عجیب جادو ہے, یہ تو حیرت انگیز چیز ہے.
कभी किसी दवा से ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। तो उससे मेरे दिल में एक यकीन पैदा हो गया कि साइंस के लिहाज से मुझे समझ आए ना आए, फ़ायदा है इसमें। फिर जब हज़रत मुस्लिम माऊद बीमार हुए तो 58 के करीब की बात है, जब मेरी शादी हुई थी तो आसफ़ा ने मुझे बताया कि उनको कोई तकलीफ़ है जो चल रही थी पहले से। तो मैंने कहा मैं जाता हूँ अब्बा के वहाँ तबीयत पूछने जाया करता हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ होम्योपैथिक किताबें पढ़ी हुई हैं उसमें से देखता हूँ। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये तसर्रुफ़ था कि जिस जगह जहाँ से मैंने किताब खोली वहाँ जो पहली दवाई थी वो बिल्कुल मुशाबे थी, जो इलामतें मुझे बताई थी उनके बिल्कुल मुशाबे। और वहीं वो नेट्राम्योर 200 थी, मैंने नेट्राम्योर लिखा हुआ था मगर शीशों में मैंने देखा तो 200 की थी। वो मैं ले गया और एक खुराक दी और उसके बाद फिर कभी तकलीफ नहीं हुई वो। तो उससे मुझे यकीन हो गया कि ये कोई जादू टोन का नहीं है, ना महज तबर्रक, बल्कि इसमें कुछ हकीकत है, कोई खुदा ताला ने निज़ाम जारी फरमाया हुआ है। फिर मैंने हज़रत मुस्लिम माऊद की लाइब्रेरी से ही, वहाँ बहुत किताबें थीं, बड़ा ज़ख़ीरा था, जाकर वहाँ तबीयत पूछने जाया करते थे हम, आमतौर पर मगरिब के बाद जाया करते थे। तो तबीयत पूछ के फिर मैं लाइब्रेरी में चला जाता था, फिर वहाँ से उठानी भी शुरू कर दी और घर ले आता था और बाद सारी सारी रात पढ़ता रहा। तो बहुत लंबा अरसा मैंने शनासाई हासिल की है और अभी इलाज नहीं शुरू किया, बल्कि किताबों पर किताबें पढ़ी, उनको दवाओं के मिजाज को अपने ज़हन में उनका नक्श जमाया, फिर रफ्ता रफ्ता इसकी प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन बाकी बातें फिर अब मैं बताऊं कि होम्योपैथिक होती क्या है, इसका असूल क्या है, कैसे ईजाद हुई। एक जर्मन डॉक्टर थे, उनका नाम था हानेमन, और वो एलोपैथिक डॉक्टर थे। 60 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने पहली मर्तबा होम्योपैथिक की तरफ तवज्जो की। और होम्योपैथिक उन्हीं की ईजाद है, हकीकत में तवज्जो तो बाद में हुई ज़्यादा, लेकिन 60 साल की उम्र में उनको पहली मर्तबा ख्याल आया कि ये कोई ऐसी बात का इम्कान है। उनका जो ये साल है होम्योपैथिक की ईजाद का, ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल है, 1835, इसलिए मुझे याद रह गया। तो 1835 में जहाँ खुदा ने एक रूहानी निज़ाम की बुनियाद डाली है शिफा की, वहाँ एक नई किस्म की शिफा की बुनियाद भी डाली जिसका ताल्लुक भी रूहानियत ही से है। और इसका सबूत ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने एक ताउन के ज़िक्र में, जब ताउन की पेशगोई फरमाई कि कसरत से फैलेगी, और उस वक्त अजीब हालत थी दिल की, एक तरफ आपकी सच्चाई का मदार था कि ताउन ज़ाहिर हो और उसी तरह तबाही मचाए, दूसरी तरफ गहरी इंसानी हमदर्दी का तकाजा था कि लोगों को तकलीफ ना पहुँचे। तो आपने एक इश्तिहार शाया फरमाया, एक तरफ पेशगोइयाँ हो रही थी, दूसरी तरफ ये इश्तिहार शाया फरमाया कि एक रूहानी ज़रिए से मुझे एक इल्म हुआ है और मेरे दिल में अल्लाह ताला ने इस बात के लिए बेहद जोश भर दिया है कि मैं तमाम बनी नौ इंसान को बताऊं कि ये क्या चीज़ है, और इससे बनी नौ इंसान के बहुत सी शफा के फ़ायदे मुतल्लक हैं और इसमें बहुत बड़ी शफा के राज हैं। और वो बात क्या थी कि मेरे दिल में अल्लाह ताला ने, यानी यही रूहानी ज़रिए से ये डाला गया है कि इल्हाम का लफ्ज़ नहीं, लेकिन सिर्फ रूहानी ज़रिए का लफ्ज़ है कि अगर किसी मुल्क में गुदूदों की बीमारियाँ, यानी ग्लैंड्स की बीमारियाँ हों, और ताउन एक ग्लैंड की बीमारी है, तो उस मुल्क में अगर जल्दी अमराज फैला दी जाएं तो जो गुठलियों की बीमारियां हैं वो निकल कर बाहर जल्द पर ज़ाहिर हो जाती हैं और इंसान के जो अंदरूनी आज़ा हैं वो महफूज रह जाते हैं और जल्द की तकलीफ़ में मुंतकिल हो जाते हैं। और ये कोई बुरा सौदा नहीं, बहुत बेहतर है। अगरचे बज़ाहिर तकलीफ़ होती है लेकिन ख़तरनाक बीमारी से इंसान बच जाता है। तो
फरमाया कि मुझे खुदा ताला ने ये दो सिखाए हैं, दो दवाएं, एक सल्फर और एक मरकरी, कि गंधक और पारे के ज़रिए अंदरूनी बीमारियों को बैरूनी तरफ मुंतकिल किया जा सकता है। अब जब मैंने होम्योपैथी शुरू की तो इस बात से मैं हैरान रह गया कि मैंने ही यही नज़रिया हनीमन ने भी पेश किया था, और उसने कहा था कि बाज़ दवाओं के असर से अंदरूनी बीमारियां बाहर की तरफ मुंतकिल होती हैं, उसको हम रद्द अमल कहते हैं। और लोग डर जाते हैं कि होम्योपैथिक से दवा लेते हैं किसी होम्योपैथ से, और अचानक जल्द पर तकलीफ होती है तो कहते हैं वो हम मारे गए, हमें बहुत तकलीफ बढ़ गई। और उन्होंने मुतनब्बे किया है कि मारे नहीं गए, फ़ायदे का सामान है, ये यकीनी तौर पर समझ लें कि आपको पहले से फ़ायदा होगा, वरना अंदर से कोई और चीज़ यूं ही बाहर फेंक ही नहीं सकती। जो दवा भी अंदर से बाहर की तरफ बीमारी को मुंतकिल करे वो अच्छी है, जो बाहर से अंदर की तरफ लेके जाए वो बुरी है। अब ये था हनीमन साहब का, ज़रा सा आप इस तरफ हो जाए, हाँ ठीक है, यानी एक होम्योपैथी के मुतालिक इजहार ख्याल, जिसमें ये दो दवाएं उन्होंने कहा ये हमारी चोटी की दवाएं हैं। इसको कहते हैं मेन स्टे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जर्मन से तर्जुमे में, कि दीज टू आर मेन स्टे अगेंस्ट ग्लैंडुलर डिजीजेस, यानी अंदरूनी वजूदों की बीमारियों को ये बाहर निकालने में बुनियादी सतून का काम देने वाली हैं। तो इससे फिर मेरे दिल में ये जब मसीह सल्लल्लाहु का इक़्तिबास पड़ा तो फिर और भी दिल में ज़्यादा तकलीफ पैदा हुई। बहर हनीमन साहब ने क्यों इस नई ईजाद का सोचा? उन्होंने देखा कि बड़ा लंबा तजर्बा होम्योपैथिक इलाज का था, कि जो हम होम्योपैथिक एलोपैथिक इलाज का था, एलोपैथिक के ज़रिए इलाज करते हैं तो मरीज़ अच्छा होने की बजाय एक बीमारी से शफा पाता है, एक दूसरे में मुब्तला हो जाता है, दूसरे से शफा पाता है एक तीसरी में, और फिर एक पैराफर्नीलिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि एक इर्द गिर्द झंझट सा उठ खड़ा होता है बीमारियों का, और एक की बजाय 2, 3, 4, 5 बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इस पर ये क्यों ऐसा होता है, उस पर उन्होंने ये नज़रिया मालूम किया, ये नज़रिया पेश किया, ये बात समझी कि होता यह है कि जब हम एलोपैथी के ज़रिए किसी बीमारी को दबाने की कोशिश करते हैं तो अमलन ये शिफा नहीं है, ये दबाना है। और उसकी मिसाल उन्होंने ये पेश की कि जब किसी को सर दर्द हो रही हो और हम एस्पिरिन दे देते हैं तो उससे सर दर्द एक इलामत है जो किसी दवा के असर से दूर हो जाती है, लेकिन वो दवा उस असल जड़ को नहीं काटती जिसकी वजह से सर दर्द हो रही थी। और एस्पिरिन की मिसाल दी है उन्होंने कि हमें क्या पता कि सर दर्द क्यों हुई है, चुनांचे उन्होंने कहा कि डॉक्टर उस वक्त तक की तहकीक के मुताबिक ये राज तो पा चुके हैं कि सर दर्द जिसको एक बीमारी समझते हो ये 100 या 1000 बीमारियों का नाम हो सकता है। गुर्दे की तकलीफ से भी सर दर्द हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर से भी हो सकती है, लो ब्लड प्रेशर से भी हो सकती है, जिगर की बीमारी से, अंतड़ियों में कोई तकलीफ है उससे हो सकती है, कई किस्म के बुखार हैं उनके से जहरीले मादे पैदा होते हैं, और हर एक का अपना अपना एक असर है। तो हम एलोपैथिक में उसको एक बीमारी कहते हैं और दूर करते हैं इलामत को, और ज़रूरी नहीं है कि इलामत के साथ वो असल चीज़ भी दूर हो जाए। वक्त के साथ हर बीमारी का रद्द-ए-अमल जिस्म दिखाता है, वो ठीक भी हो जाती है, मगर इलामत दूर कर देना इलाज नहीं है। उससे दूसरा नुकसान कहते हैं ये है कि कुछ देर के बाद वही मरीज़ जो एक गोली से शिफा पा जाता था उसका सर दर्द 2 से भी शिफा नहीं फिर पाता, फिर 3 और फिर 4 करनी पड़ती है। कोई पैगाम आया हुआ आपको? दवाई का नाम पूछ रहे हैं जो हुजूर ने, हज़रत मुस्लिम मौद ने हुजूर को दी थी सर दर्द के लिए। वो मुझे नाम ही नहीं बताया था मुझे अपना, और वही सर दर्द ही मैंने बात शुरू कर दी है। एक साल में लिखकर भेजा कि फ़ौरन नाम बताएं कि हज़रत मुस्लिम मौद ने आपको क्या दवा दी थी। वो तो मैंने बताया ना, आंखें बंद थी, मुझे पता ही नहीं था, वो खाली मुंह में डाली हैं गोलियां, और ना मैंने पूछा, और ना हर सर दर्द का एक इलाज है, यही तो मैं समझा रहा हूँ।
इत्तेफाक से बात वही चल रही है जिसके मतलब सवाल आया। खैर उन्होंने इस पर ये बहस उठाई बड़ी लंबी दिलचस्प कि सर दर्द की 101 कॉजेज, जिसमें मुहावरा अंग्रेजी का 101 वजूहात हो सकती हैं। तो एलोपैथिक से जब आप इलाज करते हैं तो ज़्यादा कुछ देर के बाद जिस्म उसको कबूल नहीं करता और ज़्यादा देनी पड़ती है। जब ज़्यादा देनी पड़ती है तो हर दवा का कुछ मनफी असर भी होता है। जैसे एस्प्रिन एक तेज़ाब है और वो बाज़ झिल्लियों पे काटने का असर रखती है, तो उधर वो एक सरसरी असर को मिटा रही है, दूसरी तरफ एक गहरा नुकसान पहुंचा रही है और एक और बीमारी पैदा कर रही है। तो उन्होंने कहा मेरा तजुर्बा है कि ऐसे मरीजों को गुर्दे की भी तकलीफ हो जाती है, दिल की भी हो जाती है, जैसे मैंने बयान किया था अपने ज़ाती तजुर्बे से, यही बात उन्होंने लिखी है। तो कहते हैं इस पर वो कहते हैं मुझे ख्याल आया कि जिस्म जो कबूल नहीं करता असर को, इसका मतलब है जिस्म में मुकाबले की खुदा ने ताकत रखी हुई है और कुछ देर के बाद वो रद्द अमल दिखाता है, और उसका मनफियत को ना कबूल करना ये भी जाहिर करता है कि शर के खिलाफ वो उठता है और शर को भी कबूल नहीं करता, इसलिए और ज़्यादा शर दिखाना पड़ता है उसके लिए, यानी तेजाबियत भी बढ़ानी पड़ती है नुकसान पहुँचाने के लिए। इससे उनके ख्याल में उनके जहन में ख्यालात का सिलसिला चल पड़ा। फिर उन्होंने एलोपैथिक किताबों से तहकीक की और वो तमाम दवाइयाँ अलग करके उनकी फहरिस्त बनाई, जिन दवाओं के मुतालिक तमाम अतिब्बा जानते हैं कि उनको अगर थोड़ी मिकदार में दिया जाए तो बाज़ बीमारियों का वो इलाज हैं, अगर ज़्यादा दिया जाए तो वही बीमारियां पैदा करती हैं। मसलन इन्होंने मिसाल दी हुई है इपिकॉक की, जो मछली की बड़ी एक चोटी की दवा है, लेकिन आगे मैं जैसे कि समझाऊंगा हर मछली के लिए असर नहीं दिखाएगी। आगे जब मजमून खुलेगा तो फिर आपको समझ आएगी कि ये इसका तरीक़ा इलाज क्या है। और इसी तरह ओपियम, टिंचर ओपीआई, टिंचर इपिकॉक और टिंचर ज़ंज़िबार, ये मिलाकर मैदे की ऐसी तकलीफ़ों के लिए देते थे डॉक्टर। क्लासिकल नुस्खे में बड़ा अच्छा होता था नुस्खा, कुछ थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब डाल दिया करते थे, जिससे वो मछली हट जाती थी या सर दर्द को भी कुछ आराम आता था। तो उन्होंने कहा कि ये सब डॉक्टर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि अगर इपिकॉक ज़रा सी ज़्यादा दे दो तो मछली पैदा करती है, और इसी तरह ओपियम शदीद मछली पैदा करती है अगर इसको किसी को ज़्यादा दे दी जाए। फिर मुझे ख्याल आया कि ओपियम जो लोग ज़्यादा खाते हैं वो इतना खा जाते हैं उनको कुछ भी नहीं होता, और जिसको आदत नहीं है उसको ज़रा सी ज़्यादा हो जाए तो वो उल्टा के रख देती है, पसीने छूट जाते हैं उसके, और कै मछली और फिर बेहोशी तारी हो जाती है। तो इस ख्याल को मज़ीद तक़वियत मिली कि जिस्म में अल्लाह ताला ने हर किस्म के बैरूनी हमले से दिफा की ताकत रखी है, लेकिन उसको उसके ऊपर जिस्म को ख़बरदार करना और उसके ख़िलाफ़ मुस्तैद करना बहुत ज़रूरी है। वरना बाज़ दफ़ा हमला इतना अचानक होता है, जैसा कि उन्होंने कहा ना कि अचानक किसी को दो तो जो पहले से तैयार नहीं किया गया वो मगलूब हो जाएगा। तो कहते हैं बाज़ दफ़ा हमला इतना अचानक होता है कि मरीज़ फिर मगलूब हो जाता है। या और ऐसे मुहर्रिकात हैं, मसलन जिस्म में वैसे कमज़ोरियाँ हैं बाज़, उनके ज़रिए वो उसका दिफा कमज़ोर हो जाता है। फिर उन्होंने एक और तहकीक की, उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा है कि एक ही फ़िज़ा में पलने वाले बाज़ लोग हैं जिनको टीबी हो जाती है और बाज़ों को नहीं होती, और बाज़ सारी उम्र टीबी वालों की खिदमत करते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। हमारी थी आपा नसीरा, मियाँ खुर्शीद अहमद साहब की वालदा और मियाँ इज़्ज़त साहब की छोटी बेगम, उन्होंने अपने दूसरे बच्चों की जो पहली वालदा से थे, भाई सईद और भाई मुबारक, उनकी बेहद खिदमत की। लोग हैरान होते थे कि छोटी उम्र की लड़की, इसने अपने आप को हल्कान कर दिया है, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई टीबी का असर उन पर नहीं रहा, ना हुआ कभी, ना कभी बाद में ज़ाहिर हुआ, मतलब है। तो
यही हनीमन ने बात नोट की कि अजीब बात है, बाज बीमारी पकड़ लेते हैं, बाज नहीं पकड़ते। तो इसका मतलब ये है कि बीमारी के खिलाफ जिस्म में ताकत ज़रूर मौजूद है, लेकिन बाज़ और किस्म की अंदरूनी कमज़ोरियां हैं जो उस दिफा को कमज़ोर कर देती हैं। इसकी तरफ हमें तवज्जो करनी होगी कि वो क्या है, इस मसले को समझना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम जब इलाज करते हैं मसलन एनीमिया का, तो कहते हैं जी इसमें आयरन की कमी है और आयरन देना शुरू कर देते हैं। और फिर जब आयरन से फ़ायदा नहीं होता तो फिर कहते हैं इसमें फोलिक एसिड की कमी है, वो भी साथ दिया जाए वरना आयरन हजम नहीं होगा। कहते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि उसी घर में वही ग़िज़ा खाने वाले दूसरे बच्चे, बड़े छोटे सब हैं, और वो अच्छे भले हट्टे कट्टे और उनके चेहरे सुरख, और एक बेचारा मदकूक हुआ चेहरा दर्द, उसमें खून ही नहीं पैदा हो रहा। तो आयरन भी वो उतना ही खा रहा है जितना बाकी खा रहे हैं, फोलिक एसिड भी उसमें उतना ही जा रहा है जो उसको जज़ब करने में मदद करता है। तो क्या वजह है, उसको क्यों नहीं हो रहा? तो उससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो बीमारियां हैं ये बहुत से इम्कानात, एहतमालात रखती हैं, और हमारे पास वो ज़राए नहीं हैं कि हर बीमारी की कुनों को पकड़ लें और ये मालूम कर सकें कि इसका असल मुहर्रिक क्या था। फिर वो सर दर्द की बहस में मज़ीद ये समझाते हैं कि जब मैंने जायज़े लिए तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मुख्तलिफ पॉइजन्स, टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादों को इस्तेमाल करके देखूं और इस्तेमाल करा कर देखूं, और इसका नाम प्रूविंग उन्होंने रखा। थोड़ी डोज में बार बार खाया ताकि जिस्म हार जाए उससे, और फिर देखूं कि हर पॉइजन अपना क्या असर दिखाता है। मसलन एकोनाइट एक जहर है, वो उससे भी सर दर्द पैदा होती है। जब वो एकोनाइट उन्होंने इस्तेमाल किया तो उन्होंने इलामतें नोट की कि एकोनाइट से सर दर्द जो पैदा होती है अचानक आती है, तदरीजन नहीं होती, और चेहरा तमतमा उठता है और दिल इस तरह धड़कता है जैसा ढोल बज रहा हो, और यानी शिद्दत पैदा हो जाती है उसमें, और शदीद खौफ तारी होता है, और ऐसा मरीज़ यकीन कर लेता है कि बस मैं गया, अभी मैं मर जाऊंगा। ये इलामतें हर दर्द की तो नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर इस किस्म की दर्द हो और एकोनाइट बहुत कमज़ोर करके इतनी खफीफ मकदार में दिया जाए, उसको पोटेंटाइज करना कहते हैं कि उसको फिर हिलाया जाए तो उसके ज़र्रे बराबर सब जगह फैल जाएं, तो हो सकता है ये बैरूनी जो पैगाम है ये अंदरूनी खाबीदा ताकतों को जगा दे। ये उन्होंने एक तस्वुर बांधा, और इस पर उनकी मदद, उसके जो वैक्सीनेशन का इलाज उस वक्त जारी हो चुका था, उसने इनकी मदद की कि वैक्सीनेशन भी तो दरअसल एक ऐसे जरासीम को जिस्म में दाखिल करना है जिनको अमदन कमज़ोर कर दिया जाता है। ये यकीन पैदा कर लिया जाता है कि ये जरासीम इस तरह नीम मुर्दा हो चुके हैं या तकरीबन मर ही चुके हैं कि अब ये जिस्म में वो बीमारी पैदा करने में नाकाम रहेंगे। उसके खिलाफ जिस्म रद्द-ए-अमल दिखाता है और कामयाब रद्द-ए-अमल दिखाता है, मगर बाज़ शदीद बुखार भी चढ़ जाता है, जिस्म टूटने लगता है, मगर वो बीमारी नहीं होती, और फिर 3-3 साल तक उस बीमारी से इंसान कुलियतन महफूज रह जाता है। फिर वो बड़ी मकदार में भी जरासीम अंदर वो फेंक दो उसके, तभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो तहकीक का रास्ता था ये आगे खुलता चला गया, नए दरवाजे खुलते रहे। तो उन्होंने कहा ये तहकीक की और फिर तलाश में रहे कि कोई ऐसा मरीज़ दिखाई दे जिसमें एकोनाइट की इलामतें दिखाई दें। एकोनाइट उन्होंने इस तरह बनाया कि एकोनाइट को 100 कतरों में डालकर एक कतरा, उसको खूब अच्छी तरह हिलाया, यूँ एक शीशी में 100 कतरे अंदाजन रख लिए ना उन्होंने, और फेंक दिया उसको। आखिर पे एक कतरा जो चिमटा रह जाता है साथ, उसी में दोबारा उतना पानी या अल्कोहल डाल दिया और उसको फिर शेक किया और फिर फेंक दिया। तो उन्होंने कहा ये 2 पोटेंसी है। पोटेंसी का भी बता दूं क्या होती है
यानी एक कतरे का 1/100 अगर हो तो उसको एक पोटेंसी कहते हैं, और उस 1/100 का 1/100 यानी 10,000वां हिस्सा वो 2 पोटेंसी है, और 10,000वां हिस्से का एक लेकर उसको फिर 100 से ज़रब दे दो तो कितना बन जाएगा? 10 लाख हो जाएगा या ज़्यादा? 1 करोड़ है, 2 सिफरे और हो जाएंगे बस। वो तीसरी पोटेंसी है। और फिर उसको दोबारा एक कतरा उसका लेकर उसमें उसको 100 गुना ज़्यादा पानी मिला दो या कोई दूसरा महलूल, 1 करोड़ चौथी बन जाएगी, जिसको हम 30 पोटेंसी ऑर्डिनरी पोटेंसी कहते हैं। वो ये चीज़ है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप 1/1 लिखकर 60 सिफरे उसके इर्द गिर्द लगा, इसके दाईं तरफ लगा दें, तो एक कतरे का इतनावां हिस्सा उस दवा में है जिसको आप 30 के तौर पर खाते हैं, और ये रोज़मर्रा की मामूली दवा है। इसको छोटी पोटेंसी कहा जाता है, और इसको पढ़ने के लिए किसी ज़ुबान में कोई लफ्ज़ नहीं है। 60 जीरो वाला कोई हरफ, कोई हिंसा, कोई एक्सप्रेशन किसी ज़ुबान में नहीं है, ये क्या चीज़ है। इसलिए साइंसदान जब इन हदों में जाते हैं तो उसको उसके ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, मुरब्बा करके, स्क्वायर स्क्वायर, इतना स्क्वायर, इतने स्क्वायर। तो ये होम्योपैथिक का तरीक था जो उन्होंने इजाद किया, और जब ऐसा मरीज सामने आया उन्होंने वो दवाई दी, वो फ़ौरन ठीक हो गया। तो एक और दिलचस्प नतीजा उन्होंने ये निकाला और तजर्बे से उसको हमेशा दुरुस्त पाया कि जो बीमारियां अचानक आती हैं वो अचानक छोड़ देती हैं, वो एक्यूट डिजीज़ कहलाती हैं उनके नज़दीक। या वो मरीज को ही साथ ले जाएंगी या फ़ौरन उसके पीछे छोड़ देंगी और कुल्लियतन वापस चली जाएंगी। और जो बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती हैं उनको एकदम दूर करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मरीज को उससे बाद दफ़ा शदीद नुकसान पहुंचता है। वो जिस्म के अंदर बारीक आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता पैदा होने वाली तब्दीलियों से पैदा होती हैं, और जिस्म के खुलियों की हालत बदल देती हैं, आपके ग्लैंडुलर सिस्टम को तब्दील कर चुकी होती हैं। इसलिए अचानक हुक्म दो कि जिस्म को छोड़ दे, नहीं छोड़ेंगी। इसलिए दवाएं भी वही ढूंढनी पड़ेंगी, वो तेज़ाब ढूंढने पड़ेंगे जिनका असर आहिस्ता आहिस्ता असर पैदा होता है, ज़ाहिर होता है। एक इंसान एक खुराक खा रहा है 10-20 साल से, और उसको पता ही नहीं कि इसमें कुछ तेज़ाबी मादे भी हैं, और फिर आखिर जाकर वो बीमार पड़ जाता है, गंठिया का मरीज़ हो जाए, जोड़ हरकत नहीं करते, तो बाद में डॉक्टर बताते हैं कि तुम फलां मुल्क में फलां पानी पिया है, वहाँ ये एलिमेंट ज़्यादा था, कैल्शियम ज़्यादा था, वगैरह वगैरह, वो रफ्ता रफ्ता तुम्हारे जोड़ों में बैठा है और तुम्हें ये बीमारी हो गई। तो उसका इलाज भी ऐसी दवाओं से करना पड़ेगा जो रफ्ता रफ्ता असर दिखाती हैं। इसी ज़मीन में अब कहते हैं वक्त थोड़ा, मगर बाकी ये मेडिसिन इंशाल्लाह चलेंगी। हर रोज़ तो नहीं हो सकेगी, मगर 1-2 दिन मैं चलाऊँगा, फिर वक्फा डाल के। तो उन्होंने सोचा कि बाद और बीमारियाँ, दवाएँ सर दर्द पैदा करती हैं। बेलाडोना एक है जिसको हम एलोपैथी में कसरत से इस्तेमाल करते हैं। जोड़ों में वरम हो, फोड़े पकाने हो, उस पर भी बेलाडोना प्लास्टर लगाया जाता है। इसमें असर है कि ये खून को एक तरफ खींचता है, और इसका जिस्म के अंदर ये असर ज़ाहिर होता है कि सर किसी एक उज़व की तरफ गैर मामूली तौर पर हजूम कर जाता है, खून किसी एक उज़व की तरफ, और उससे सर दर्द जो पैदा होती है वो एक्रोनाइट से मिलती जुलती है। शदीद धड़कन, बोलने से भी तकलीफ होती है, कहते हैं मेरा सिर फट रहा, खुदा के वास्ते बात ना करो, और सर लपेट के आदमी खामोश लेट जाता है। और अगर उससे पूछा जाए तो खौफ वगैरह का, तो उसको कोई खौफ नहीं। एक्रोनाइट और इसमें बस यही फ़र्क है, ये खौफ नहीं पैदा करता बल्कि लेथार्जी सा, एक बेपरवाही सी पैदा कर देता है। ये मैंने उनके यहाँ पढ़ा था, मुझे याद है। मरी में एक दफ़ा मेरे छोटे भाई मियाँ हनीफ अहमद साहब, उन्होंने वो एक लिखा भी तो था, ये रहा मौला के मतलब बड़ा अच्छा एक फ़करा कल ही ख़त में आया था। हाँ, रेहा गुस्फंदान आली जनाब, ये मियाँ हनीफ ने लिखा था। और अजीब बात है कि उसी दिन सुबह तहज्जुद के वक्त मुझे हमीशाम का ये शेर, ये मिसरा, इल्हामी मिसरा याद आ रहा था
कि हो सकता है इन्हीं भेड़ों पर, मसीह की भेड़ों पर इतलाक होता हो। मगर मैं इसलिए रुक गया बयान करने से कि ये शेर हैं, मसीह भेड़ें तो नहीं हैं। मगर शेर जब ऐसी मजलूमियत की हालत में हो तो भेड़ों की तरह ही समझे जाते हैं, उनको तो भेड़ों ही समझा हुआ था, तो हो सकता है उन पर ये इतलाक पाता हो। ये मियाँ हनीफी थे, मरी में हम गए, खाने पर ये नहीं थे, मैं उठ के उनके कमरे में गया, मैंने कहा खाने पर नहीं, सिर लपेट के लेटे हुए थे। कहते आहिस्ता भाई आहिस्ता बात करेंगे, तो सिर फट रहा है। वो मुझे एकदम बेलाडोना याद आया, मैं दौड़ा गया अपने कमरे में, बेलाडोना की चंद गोलियां मुंह में डाल के वापस आके मेज पे बैठा हूँ, पीछे पीछे हंसते हुए आ रहे थे कि आपने मुझे क्या दिया था, तो सिर दर्द का निशान ही मिट गया है। तो होम्योपैथिक जो है ये महज टोटके नहीं है, बहुत गौर से सही दवा ढूंढनी पड़ेगी। अब एक एस्प्रिन नहीं है हमारे पास, 101 बीमारियां सिर तेजाब या तेजाबी मादे अगर सिर दर्द पैदा करते हैं तो हर एक की इलामतें अलग अलग हैं, हर एक के लिए अलग दवा है। उस दवा को याद रखना पड़ेगा, उसका मिजाज को अपने ज़हन में नक्श करना होगा, यहाँ तक कि वो मरीज़ जब सामने आए तो आप उसको पहचान लें, जैसा मैंने मियां हनीफ को पहचाना, मैं ये तो बेलाडोना है, तो फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये फ़लाँ बीमारी एकोनाइट है, या आर्सेनिक है, ये पल्सटिल्ला है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। फिर अगर आपका ख्याल दुरुस्त है तो दवा तीर बहदफ होगी। अगर आहिस्ता दूर आने वाली सर दर्द थी तो एकदम नहीं जाएगी, आहिस्ता जाएगी। एकदम आने वाली थी, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, खुदा हाफिज़, ईमान अल्लाह।